Hey there, loved ones. I'm sure you are in the best of your health and enthusiastic spirits. Yes, good. Woo-hoo! Woo-hoo! Today, I'm going to tell you the story of the unstoppable warriors of Inspiration Public School who are giving Corona a tough fight. Corona, the fatal virus that seemed to stop the world forever. But for how long? For how long? When charaveti, chalte raho is the mantra. For life cannot stay stuck forever. The show must go on. Although the schools were closed for the time being, but still, even the lockdown all over couldn't outwin the IPS spirits. The will to work, the will to learn and to perform, the will to elevate, enlighten, and spread hope. Educating through amazingly creative and innovative ideas. Inspiration Public School, tirelessly pioneering joyful learning in the field of quality education. Come on. Let us see what the IPS family is doing right now. Zoom, 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 zoom. हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना कि किस प्रकार से दो बिल्लियों की आपसी लड़ाई से चालाक बंदर ने फायदा उठाया और सारी रोटी अकेले हड़प ली। अच्छा, बताओ बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? मैम, हमने सीखा कि हमें आपस में सदा मिलजुल कर रहना चाहिए, वरना दुश्मन हमारी आपसी फूट से फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, शाबाश रोहन। चलो बच्चों, आज का होमवर्क लिखो। Okay, children. So this is how you have to add, subtract, multiply and divide. Got it? Yes, my dear students. I'm very happy to see you all learning your English lessons well. Keep it up. Keep revising your subject properly to flourish in your final examination. Is that clear to all of you? Yes, ma'am. Long ago, people thought that our earth is flat like a coin. But later, it was proved that it is actually spherical. To make the study of this huge spherical earth easy, we make use of a globe. Dear students, I hope now you know how animals use their various senses to see, hear, taste, smell and feel. Got it? Yes, ma'am. Good. Take a deep breath. Hold it for a moment. Now exhale. Repeat, starting from the other nostril. Be ready for the warm-up exercises now. 1, 2, 3, 4. Corona is going to be defeated for sure. 1, 2, 3, 4. Corona is going to be defeated for sure. Come on, students. Practice playing it again. Wow! The teachers are working so hard. Students too are doing well, but kids are kids.
Sometimes they do not understand the importance of these lessons and learning opportunities. This is the reason why they need to be constantly watched, guided, appreciated for all their little efforts, and inspired through various ways. Let's have a look at how Divyansh, Vaishali, and Dakshu are taking their online lessons. Oh, don't disturb Dakshu. I am having my Zoom class. Vaishali, who's there? Dakshu, ma'am will scold me. Don't disturb. Divyansh, who is with you? Dakshu, your video is disabled, beta. Turn it on. I cannot see you. Tweet, 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 tweet. Tweet, tweet. Oh, Mama ji. बेटा दक्षु, लगता है आपने आज फिर से अपनी क्लासेस स्किप की हैं। मामा जी आपसे गुस्सा है। आपकी मैम का फोन आया था कि आप अच्छे से अपने ऑनलाइन लेसन्स अटेंड नहीं करते हो। पर मामा जी, मैं कभी कभी बोर हो जाता हूँ। मैं ना मामा जी उधम तो नहीं करना चाहता, बट ना मामा जी वो मेरे से ना आपे हो जाता है। मैं क्या करूँ? सब मुझे डांटते हैं। अरे मेरे लड्डू गोपाल, तुम काम ही मत किया करो ना डांट खाने वाले। जस्ट कीप अ वॉच ऑन व्हाट यू डू। कंट्रोल सुपर बॉय, कंट्रोल। मामा जी, ये! अरे मेरे लाडलो, इजी इजी इजी। आज की ऑनलाइन क्लासेस ओवर हो गई हैं लगता है। ये लो नानी के हाथ के तिल के स्वादिष्ट लड्डू और सेहत बनाओ। मामा जी, सिर्फ लड्डू में मत बदला देना। कह देते हैं वो जो लास्ट टाइम का प्रॉमिस था ना, कहानी जरूर सुना देना। हे भगवान, पढ़ाई छोड़ के सब याद रहता है इन्हें। अभी हम नन्हे छे पाले छे बच्चे जो हैं। ओके ओके। चलो आज हम गुरु के महत्व को जानते हैं। फिर बच्चों, हमारे महान भारत देश में अनेक वीर सपूतों ने और वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। प्राचीन काल से ही वीर राजाओं की एक गौरवशाली परंपरा रही है हमारे भारत देश में। ऐसे ही एक महान पराक्रमी राजा हुए राजा भोज, जिनका शासन सारी पृथ्वी पर फैला था और जो वीर पराक्रमी तो थे ही, साथ ही अत्यंत दयालु भी थे और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। समय समय पर वे अपनी जनता के सुख दुख की खोज खबर भी चुपके से पता करते रहते थे और उन सबके साथ न्याय करते थे जिनको न्याय की आवश्यकता होती थी। एक बार राजा भोज और उनके गुरु राज्य का हालचाल जानने के लिए वेश बदलकर चुपचाप बिना अपने सैनिकों और अंगरक्षकों को साथ लिए रात के अंधेरे में निकल पड़े।
चलते चलते रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिला। वे जंगल के रास्ते बढ़े जा रहे थे कि तभी देखते क्या हैं कि उनके रास्ते को रोकता हुआ भयंकर रूप से गरजता उफनता एक पहाड़ी नाला उनके ठीक सामने है। नाला खतरनाक था और उसमें उतरकर उसको पार करके ही आगे बढ़ा जा सकता था। गुरु आगे थे तो नाले में उतरने के लिए वे आगे बढ़े, परंतु राजा भोज ने जिद पकड़ ली कि वे पहले स्वयं ही नाले में उतरेंगे। जब सब कुछ ठीक है, सुरक्षित है, ऐसा वे सुनिश्चित कर लेंगे, तभी गुरुदेव पानी में उतरेंगे। गुरुदेव ने बहुत समझाया, किंतु राजा की हट के आगे गुरुदेव को झुकना पड़ा। खैर, अंततः दोनों ने सुरक्षित नाला पार कर लिया। पार जाकर गुरुदेव ने स्नेह भरी डांट लगाते हुए राजा भोज से पूछा कि उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा न मानते हुए आज इतनी जिद क्यों की और नाले में पहले क्यों उतरे। यदि देश के राजा को कुछ हो जाता तो। राजा भोज ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं, आप अनमोल हैं, ज्ञान का भंडार है। मैं जो कुछ भी हूं सब आपकी कृपा से है। यदि आज मुझे कुछ हो जाता तो मेरे से भी पराक्रमी राजाओं के निर्माण की क्षमता आपके पास है, किंतु इस भयंकर नाले में आप पहले उतरते और आपको कुछ हो जाता तो मैं कभी भी आप जैसे गुरु का निर्माण नहीं कर सकता था। मैं तो आपका शिष्य हूं ना, अति अल्प ज्ञानी हूं, किंतु आप तो मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं। ऐसा कहते हुए राजा भोज गुरुदेव के चरणों में झुक गए। गुरुदेव ने उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और खूब आशीर्वाद दिया। तो बच्चों, देखा तुमने राजा भोज अपने गुरु का कितना आदर करते थे और आया समझ कि हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व है। Our teachers work so hard for us. We should always respect the ones who educate us, guide us, help us and inspire us at all times. हाँ, कभी कभी आपके टीचर्स, पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स आपको डांटते हैं, लेकिन मेरे छोनू मोनू बच्चों, वो इसलिए कभी कभी डांटते हैं क्योंकि वो आपकी चिंता करते हैं, आपको प्यार करते हैं। मामा जी, मैं मैम को सॉरी बोलूँगा एंड प्रॉमिस भी करूँगा कि आई विल ऑलवेज बी अ गुड स्टूडेंट नाउ। हम भी सॉरी बोलेंगे मामा जी, क्योंकि ना हमने भी ना अपने लेसन्स मिस किए हैं कई बार। वो वीडियो गेम्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं ना, बट अब नहीं। नाउ विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू आवर टीचर्स। अरे वाह, अरे मेरे भारत के उज्जवल भविष्य हो, जीतते रहो, खूब तरक्की करो। मामा जी। अच्छा अच्छा, अब जल्दी करो भाई, ऑनलाइन विंटर कार्निवल शो स्टार्ट होने वाला है, देखना नहीं क्या? अरे बाप रे, हम तो भूल ही गए थे। भागो, इतनी सारी गेम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करेंगे और पपेट शो भी देखेंगे। ये मामा जी, थैंक गॉड हमने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, वरना मैम हमें विंटर कार्निवल में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं देती।
दक्षु ने तो मम्मा की डांट खा खा के कंप्लीट किया होमवर्क है। मामा जी, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं होता तो मुझे पक्का देखने को नहीं मिलता पपेट शो। नहीं बेटा, फिर तो आपको पक्का से मिलता। बाबा जी का टुल्लू। थैंक यू मामा जी, यू आर सो नाइस, वी लव